اے بلبل پپی ہے تے کمرے گٹارے، اے بلبل پپی ہے تے کمرے گٹارے، کرن ذکر رب دا اے نیلے للارے، اے بلبل پپی ہے تے کمرے گٹارے، آد تو سمد تو صدا پنچیاں دی، عہد تو سمد تو صدا پنچیاں دی، الکھ تو یوں کوئلاں دی، الکھ تو یوں کوئلاں دی، دنے رات حمداں تے صبح شام تسبیح۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ہمہ قسم کی تعریفات و توصیفات اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام احکم الحاکمین رب العالمین کے لیے خاص ہیں، جو تمام جہانوں کو پالنے والا، ہر ایک کو اس کے مقررہ وقت پہ رزق پہنچانے والا ہے، علیم بذات الصدور اور سمیع بصیر ہے۔ اللہ مالک الالام کی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی بڑائی کے مقدس کلمات کے بعد بے شمار و لاتعداد انگنت ریت کے ذرات سے بڑھ کر، پانی کے قطرات سے بڑھ کر، الف الف مرتن فی کل ذرتن درود السلام ہوں امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، کونین کے تاجور، سید الثقلین، امام القبلتین، رحمت کائنات، رحمت عالم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وآہل بیتہ رضوان اللہ اجمعین کی ذات اقدس مقدس و مطہر پر، جو کہ تمام انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے، لیکن سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف مقام اور مرتبہ حاصل کر کے آئے، حضرات ذی وقار اللہ خالق کائنات کی حمد و ثنا اور نبی کل کائنات پر درود و سلام کے مقدس کلمات کے بعد، میں آج کی اس عظیم الشان کانفرنس پر اور کانفرنس کے انتہائی خوبصورت انعقاد پر جناب محترم قاری محمد اشرف صاحب، قاری محمد حسن صاحب اور حافظ عبدالسلام صاحب اور ان کے دیگر احباب جنہوں نے آج کی یہ بزم سجانے کے لیے ان کے ساتھ کسی قسم کا بھی تعاون کیا ہے، جامعہ کے طلبہ اور اساتذہ اکرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما ان کا یہ عمل اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ دوسرا میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں حافظ محمد آصف صاحب، حافظ محمد مرتضیٰ صاحب، حافظ محمد عثمان صاحب، جنہوں نے اس جامعہ سے قرآن مجید فرقان حمید کی تکمیل کی ہے اور اپنے سینے کے اندر اللہ کے قرآن کو محفوظ کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما قرآن و سنت پر ان طلباء کو، ان بچوں کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے والدین بھی انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا اور انہوں نے قرآن جیسی عظیم دولت کو حاصل کیا۔ اللہ ان کے والدین کو بھی اس کا پورا اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار
میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے، میں انشاءاللہ الرحمن اللہ کی توفیق خاص کے ساتھ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم، قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں پیغام کیا دیا ہے، اس حوالہ سے چند گزارشات پیش کروں گا۔ قرآن کی فضیلت، اہمیت تو آپ علماء کرام سے سماعت فرماتے رہتے ہیں کہ اس قرآن کے ہر حرف کے بدلے اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ جب انسان ایک حرف پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ جب قرآن مجید فرقان حمید انسان پڑھتا ہے اللہ کے ساتھ اس کی محبت گہری ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب قرآن یہ پڑھتا ہے تو اللہ کے ساتھ یہ گفتگو کرتا ہے۔ قرآن کی یہ فضیلت اور عظمت ہے کہ جب یہ قرآن مجید فرقان حمید کو حاصل کر لیتا ہے تو اللہ مالک کائنات آخرت کے اندر بھی اسے مقام عطا فرماتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اس کو مقام و مرتبہ عطا کیا جاتا ہے۔ اور یہ میری اپنی بات نہیں ہے، کائنات کے امام، ساری کائنات کے سچے نبی، سچوں کے سچے نبی، پاک بازوں کے پاک باز نبی، کونین کے تاجور، سید الثقلین، امام القبلتین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کوئی عالم دین نہیں کہہ رہا، کوئی مفتی نہیں کہہ رہا، کوئی بہت بڑا مفکر اور مدبر نہیں کہہ رہا، بلکہ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جن سے بڑا علم والا کوئی نہیں، جن سے بڑھ کر تدبر والا کوئی نہیں، جن سے بڑھ کر تفکر والا کوئی نہیں، جن سے بڑھ کر علم رکھنے والا کوئی نہیں۔ روئے زمین پر اللہ کا عطا کیا ہوا علم جو سب سے زیادہ آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، کائنات کے امام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے، خیر والا وہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال ہو شاید وہ بہتر ہے، ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس کوٹھی کار ہو، مربع زمین جداد ہو، وہ شاید سب سے زیادہ بہتر ہے۔ جو ایم پی اے ایم این اے بن جائے شاید وہ سب سے بہتر ہے، کوئی وزیر مشیر بن جائے وہ سب سے بہتر ہے، وزیر اعظم صدر بن جائے وہ سب سے بہتر ہے۔ آؤ میں نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر و مطہر سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کائنات کے امام نے کس کو سب سے بہتر کہا ہے۔ آپ میں، ہم سب میں سے بہتر کون ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کائنات کے امام فرماتے ہیں تم سب میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو سکھاتا ہے، جس کا تعلق قرآن سے بن جاتا ہے، قرآن سیکھنے کے لیے مسجد مدرسہ میں آ جاتا ہے، قرآن سکھانے کے لیے مسجد کی مسلوں کے پر، صفوں کے پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، ان دریوں پہ بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تعلیم دینے والا کائنات کے امام فرماتے ہیں تم سب میں سب سے بہترین انسان ہے۔ نعرہ تکبیر، شان قرآن، سب سے بہترین وہ انسان ہے، سب سے بہترین وہ انسان ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو سکھاتا ہے، وہ سب سے بہتر ہے۔ سب سے بہتر کتنا بہتر ہے، اس کا مقام کتنا ہے، مرتبہ کتنا ہے، مجھے نہیں پتا، میں نے تو حدیث مبارکہ میں یہ پڑھا ہے، کائنات کے امام نے اپنی پیاری زبان سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب بچہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، یہ مسجد کی طرف رخ کرتا ہے، جامعہ ریاض الجنہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہے، اللہ کی قسم اس کی عزت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بچہ ابھی اس نے قرآن سیکھا نہیں ہے، ابھی قرآن کو سینے میں محفوظ نہیں کیا، ابھی یہ حافظ القرآن بنا نہیں، قاری القرآن ابھی بنا نہیں، اس نے ابھی سند لی نہیں ہے، سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا ہے، اس کا باپ اس کو انگلی سے پکڑ کر مسجد میں لا رہا ہے، مدرسہ میں لا رہا ہے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں یہ اپنے گھر سے نکل رہا ہے، علم کے حصول کے لیے آسمانوں سے اللہ فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، اے میرے ملائکہ جاؤ، یہ بچہ قرآن سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، علم دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، جاؤ اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دو۔
फरिश्ते अपने नूरानी पर इस बच्चे के कदमों के नीचे आकर बिछा देते हैं, जो अल्लाह के दीन का इल्म सीखने के लिए अपने घर से निकल खड़ा हुआ है, अभी दीन का इल्म हासिल नहीं किया। इतनी फजीलत है, आसमानों के फरिश्ते इसके पांव के नीचे अपने पर बिछा रहे हैं। कितनी अजमत है। कायनात के इमाम फरमा रहे हैं, मछलियां समंदरों के अंदर इसके लिए मगफरत की, बख्शिश की दुआएं कर रही है। हशरातुल अर्ज़, कीड़े मकोड़े अपने सुराखों के अंदर, बिल्लों के अंदर इसके लिए मगफरत की दुआएं करते हैं। अल्लाह ये दीन का इल्म सीखने के लिए जा रहा है, गलतियां भी होंगी, खताएं भी होंगी, कमियां भी होंगी, कई लग़ज़ियां भी इससे सरजद हो जाएंगी। अल्लाह हम इसके लिए दुआ करते हैं, इसे माफ फरमा देना। ये तालिब इल्म की फजीलत है जो दीन का इल्म सीखने के लिए आया है। जब सीख जाएगा तो क्या मुकाम मिलेगा, जब सीख जाएगा कितनी फजीलत और अजमत मिलेगी। ये तो सीखने के लिए आया है तो इसको इतना मुकाम मिल गया है, जब सीख जाएगा फिर इसका मुकाम क्या होगा। कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजलुल आलिमी अलल आबिदी, एक आबद इबादत करने वाला, शबे जिंदादार सारी सारी रात अल्लाह की इबादत के अंदर गुजार देने वाला इंसान, और एक वो आदमी जिसने इल्मे दीन को सीखा है, कुरान के इल्म को सीखा है, हदीस मुबारका के इल्म को सीखा है। ये इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ता है, सो जाता है, फजर की नमाज के लिए उठता है, मस्जिद में आता है, बाजमात नमाज अदा करता है। इसका सोना का फजलुल आलिमी अलल आबिदी, कायनात के इमाम फरमा रहे हैं, इस आलम को, इस आबद पर इतनी फजीलत है जो सारी रात उठकर कभी क़ियाम के अंदर रहा है, कभी रकू में रहा है, कभी सजदे में गिरा पड़ा रहा है। कायनात के इमाम फरमा रहे हैं, इन दोनों में मुवाजना करना चाहते हो, इनमें देखना चाहते हो, ये अल्लाह का वली है जो सारी रात इबादत में गुजार रहा है। ये आलम दीन है जिसने कुरान का इल्म सीखा है, हदीस का इल्म सीखा है। ये आलम दीन, इसकी फजीलत अगर सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, नबी के इस फरमान को सामने रख लो। कायनात के इमाम ने फरमाया, का फजली अला अदनाकुम, ऐसे आलम को इस आबद इबादत गुजार के ऊपर, जाहिद के ऊपर फजीलत हासिल है जैसे मैं मोहम्मद को तुम में से सबसे कम तर इंसान के ऊपर फजीलत हासिल है। कहां पे कम तर इंसान, सबसे कम दर्जे का इंसान, और कहां पे इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कायनात के इमाम फरमाते हैं, जैसे मुझे तुम में से सबसे कम दर्जे के इंसान के ऊपर फजीलत हासिल है, ऐसे ही आलम दीन को एक आबद इंसान के ऊपर फजीलत और अजमत हासिल है। ये है इल्म हदीस की, इल्म दीन की फजीलत। इस इल्म दीन के लिए, कुरान को सिखाने के लिए अपनी औलादों को वक़्फ़ करो, अपने बच्चों को वक़्फ़ करो। जब आपके बच्चे कुरान सीखेंगे, आपके बच्चे दीन का इल्म सीखेंगे, अल्लाह दुनिया में भी इज्जतें अता करेगा, आखिरत के अंदर भी अल्लाह इज्जतों से सरफराज फरमा देगा। अल्लाह सोने चांदी के, हीरे जवाहरात के ताज पहना देगा। अल्लाह तुम्हारे कदमों के नीचे, तुम्हारे नीचे मिंबर ऐसे जिनके ऊपर मोती लगे हुए होंगे, एक एक मोती की कीमत, ये दुनिया क्या चीज है, ये दुनिया का माल क्या चीज है, ये दुनिया के सोने चांदी इनकी क्या हसीयत है, ये दुनिया के दिरहम दिनार इनकी क्या हसीयत है। दुनिया का सारा माल, दुनिया की सारी कीमती चीजें एक तरफ उस मिंबर के पर लगे हुए जो हीरे होंगे, जो मोती होंगे, उस एक मोती का भी मुकाबला कर सकेंगे। इतनी फजीलत अल्लाह अता फरमाएंगे तुझे और तेरी औलाद को। ये फजीलतें मिलेंगी कुरान से मोहब्बत की वजह से, कुरान पर अमल की वजह से। जिन्होंने कुरान को सीने से लगा लिया, जिन्होंने कुरान की तालीमात को सीख लिया, दुनिया में भी मुमताज, आखिरत में भी मुमताज। कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दुनिया में भेजा। दुनिया में भेजने के बाद नबी के जिम्मे जो ड्यूटियां लगाई, उन ड्यूटियों में से एक ड्यूटी ये थी, ऐ प्यारे नबी, हमने तुम्हारे ऊपर ये ड्यूटी ऐड कर दी है, ये पाबंदी लगा दी है, आपके जिम्मे ये काम लगा दिया है। वो काम क्या था जो सैयदुल अंबिया जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बैतुल्लाह की तमीर के बाद अल्लाह के आगे हाथ उठाकर अल्लाह से मांगा था, रब्बना वब्अस फीहिम रसूला, अल्लाह तेरा घर तो मैंने बना दिया है, काबतुल्लाह की दीवारें तो खड़ी कर दी हैं, अल्लाह तेरा घर बन गया है, अब इस घर को आबाद करने के लिए एक इमाम भेज दे जो इमामुल अंबिया हो, अल्लाह ऐसा इमाम हो जो खातमुन नबीयीन हो, अल्लाह
अल्लाह उसको इस दुनिया के अंदर मबूस कर दे। वबअस फीहिम रसूला, अल्लाह एक रसूल, पैगंबर और नबी इनके अंदर मबूस कर दे। वो जो आएगा ना, उसकी ड्यूटी क्या होगी? यतलू अलैहिम आयातिका, वो तेरे कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के इनको सुनाए। यतलू अलैहिम आयातिका, उसकी ड्यूटी क्या होगी? नबी का मिशन क्या होगा? नबी का प्रोग्राम क्या होगा? नबी की जिंदगी का लाहे अमल क्या होगा? यतलू अलैहिम आयातिका, वो तेरे कुरान की आयतें पढ़ पढ़ कर इन्हें सिखाएगा, इन्हें सुनाएगा, इन्हें समझाएगा, मतलब बताएगा। नबी की ड्यूटी ये है कि वो कुरान की आयातें बयानात की तलावत करे, उम्मत को बताए। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, इन्हें किताब यानी कुरान की तालीम दे और हिकमत हदीस मुबारक सिखाए। वयुज़क्कीहिम, और इनका तज़किया नफ्स कर दे। इनके दिलों के अंदर जो पड़ी हुई गलाजतें हैं, गंदगियां हैं, रिजस है, पलीदगी है, वो हर तरह की पलीदगियां इनके सीनों से निकाल कर इन्हें पाक साफ बना दे। शिरक की पलीदगियां निकाल दे, बिदत की पलीदगियां निकाल दे, फाशी और यानी की जो पलीदगियां और गंदगियां इनके सीने में है, उन सब को निकाल कर वयुज़क्कीहिम, इन्हें पाक साफ कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मिशन थे, उन मिशनों का तज़किरा कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकासद इस कायनात के अंदर भेजने को जो थे, उसका तज़किरा रब्बे कायनात बयान फरमा रहे हैं। पहला ये मिशन है, पहला मकसद ये है वो अल्लाह के आयात बयानात की तिलावत करे, लोगों को कुरान सिखाए, हदीस मुबारक सिखाए, इन्हें पाक साफ कर दे। कुरान की तालीमात बड़ी है, अल्लाह की तौहीद कुरान की तालीम है, नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा, आका अलैहिस्सलाम की इताअत, ये अल्लाह के कुरान की तालीम है। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने एक एक दीन का मसला, एक एक हुक्म उम्मत को बताया है, दुनिया वालों को समझाया है। ये सारी कुरान की तालीमात हैं। आज मैं एक तालीम का तज़किरा करना चाहता हूँ और बात को ख़त्म कर दूंगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने हमें एक बड़ी प्यारी तालीम दी है, जिस तालीम को हमने छोड़ दिया है, जिस तालीम की तरफ हमारी तवज्जो नहीं है, जिस तालीम से हमने रुख मोड़ लिया है, बड़े बड़ों को हमने देखा है वो इस चीज से हटे हुए हैं। वो चीज क्या थी? अल्लाह खालिक़ कायनात ने, मालिक अर्ज़ समा ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक औरत का तज़किरा किया है कि वो औरत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई और मूसा अलैहिस्सलाम से आकर कहती है कि मेरे अब्बा जी आपको बुला रहे हैं, आप हमारे घर तशरीफ लाएं। अब्बा जी चाहते हैं क्योंकि आपने हमारी बकरियों को पानी पिलाया है, आपने हमारी बकरियों की खिदमत की है, आपने हमें हमारा ख्याल रखा है, हमारी इज्जत का पास किया है, कुएं से पानी पिला दिया है। अब्बा जी चाहते हैं आपको इसकी मजदूरी दे दे, इसका अजर और सिला दे दे, आप हमारे घर आए। इस औरत के चलने का अंदाज इतना प्यारा था, ये औरत चल रही थी, इसके चलने की कैफियत अल्लाह को इतनी पसंद आई, अरश पे खालिक़ कायनात ने इस औरत के चलने को कुरान बना दिया। तमशी अल इस्तिहया, अल्लाह का कुरान ये कहता है वो औरत जो शर्मो हया की चालें चलती हुई आ रही थी, अल्लाह ने उसकी चाल को कुरान बनाकर आमिना के लाल के सीना अतहरो मुताहर के ऊपर नाजल करके उम्मत को समझा दिया, बता दिया कि देखो मदियन के कुएं के पास अगर एक औरत चले, शुएब नबी की बेटी हो, मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, उनको बुलाकर अपने घर में लेकर जाए, उसके चलने का अंदाज इतना प्यारा था, शर्मो हया की चालें उसकी इतनी प्यारी थी कि अल्लाह कुरान बनाकर उम्मत मुहम्मदिया के लिए नाज़िल फरमा रहा है। कितनी शर्मो हया की वो चालें चली होगी, किस कदर शर्मो हया होगी उसमें, अल्लाह ने उसको कुरान बना दिया। आज हमारे अंदर बड़ी खूबियां हैं, हम बड़ी खूबियों के हामिल हैं, बड़े बड़े वसफ हमारे अंदर मौजूद हैं, लेकिन एक वसफ जो इस्लाम का इम्तियाजी वसफ है, जो कुरान की एक तालीम है, जो नबी रहमत कायनात के इमाम ने अरब के बिगड़े हुए माशरे को आके समझाई थी, सिखाई थी, जो बेहयाई फहाशी के अंदर उमड़े हुए थे, जिन्होंने रात की मजालस के अंदर लोगों के डांसों को, औरत के डांस को अपनी जिंदगी का मकसद समझ रखा था, उन सबको बेहयाई से, फहाशी से उनके सीनों को खुरच खुरच के पाक साफ कर दिया। वयुज़क्कीहिम, ऐसा तज़किया किया है कि उनके सीनों के अंदर बेहयाई, फहाशी, उड़यानी की मोहब्बत नहीं रही, अल्लाह की मोहब्बत उनके सीनों में आ गई। बेहयाई, फहाशी की गलाजतें और गंदगियां उनके सीनों से निकाल के बाहर फेंक दी।
वो शर्मो हया थी। उसी शर्मो हया की तालीम नबी रहमत कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। ये औरत शर्मो हया की चालें चल के आ रही थी। कुरान ने ये तालीम उम्मत को दे दी है। कोई इंसान जो भी शर्मो हया को इख्तियार कर लेता है अल्लाह उसको मुमताज कर देता है। जिस तरह ये औरत आई थी, इसके चलने के अंदाज को अल्लाह ने दुनिया वालों के सामने एक नमूने के तौर पर रख दिया। देखो कैसी शर्मो हया के साथ चल रही थी। आज भी जो शर्मो हया की चादर ओढ़ लेते हैं, जिसकी नजरों के अंदर हया आ जाती है, जो शर्मो हया का लिबादा ओढ़ लेता है, अल्लाह की कसम ये नजरों का झुकना शराफत की अदाएं बनती चली जाती है। जो नजरों को झुका लेता है ये शराफत की अदा बनती है। अल्लाह दुनिया के अंदर भी आखिरत में भी इसको मुमताज करके दुनिया आखिरत में कामयाब व कामरान कर देता है। और ये शर्मो हया सिर्फ नबी रहमत कायनात के इमाम ने कुरान के जरिए लोगों को नहीं सिर्फ बताया, बल्कि खुद सबसे पहले शर्मो हया के अमली पैकर बनकर दुनिया वालों को अमली लिहाज से तालीम दी है, तरबियत की है। सहाबा कहते हैं हमने रसूल रहमत कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जितनी शर्मो हया देखी है, जिस कदर शर्मो हया के पैकर कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हमने किसी और को नहीं देखा। कहते हैं इतनी शर्मो हया थी, इतनी किसी कमवारी लड़की के अंदर भी शर्मो हया नहीं होती। उससे भी ज्यादा शर्मो हया वाले कमवारी लड़की के अंदर उतनी शर्मो हया नहीं थी जितनी इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर शर्मो हया थी। एक और हदीस मुबारका में आता है 40 कमवारी लड़कियों की शर्मो हया को अगर इकट्ठा कर दिया जाए उनसे भी ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्मो हया रखते थे। शर्मो हया के पैकर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान का एक पैगाम जो शर्मो हया है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। शर्मो हया कुरान की एक तालीम है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कुरान से सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं है, कुरान को सीनों से लगा लेना सिर्फ काफी नहीं है, कुरान को गुलाफों में बंद कर कर ऊंची जगहों पर रख देना काफी नहीं है, कुरान को अपनी बेटी को घर से अलविदा करते हुए उसके सियासर के ऊपर तान कर के बेटी को हम कुरान के साए में अलविदा कर रहे हैं, सिर्फ ये काफी नहीं है। कुरान की तालीम सीखो, बेटी को कुरान की तालीम के मुताबिक शर्मो हया का अमली पैकर बनाओ। जिस तरह कुरान कहता है उस तरह की शर्मो हया वाली तालीम इसको दो। ये जाए ये अमली कुरान की तफसीर बनकर, ताबीर बनकर, तस्रीर बनकर इस घर से अलविदा हो रही हो। जिस घर में जाए उसको पता चले ये कुरान वाली है, कुरान से मोहब्बत करने वाली है, कुरान को सीने से लगाने वाली है, कुरान को सीखने वाली है, कुरान को सिखाने वाली है, कुरान के मुताबिक जिंदगी को गुजारने वाली है। फिर कुरान का मजा है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद को हमने सीखा है। सहाबा कहते हैं हमने रसूल रहमत कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों का झुकाव, कायनात के इमाम नजरों को कैसे झुकाते थे, कैसी शर्मो हया थी। कहते हैं कि जब कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चला करते तो ऐसे लगता आप किसी ढलान के अंदर उतर रहे हैं, नीची जगह के ऊपर उतर रहे हैं। ऐसे नजरों को झुकाकर रसूल रहमत कायनात के इमाम चला करते थे। आज का नौजवान नजरें उठाकर चलता है, गली मोहल्ले की नजरें इसकी उठती हुई नजर आती हैं, लेकिन तेरा मेरा नबी वो नजरों को झुकाकर चले, दुनिया वालों को बताए झुकी निगाह शराफत की अदा रखती है। जो नजरों को झुका लेता है अल्लाह उसको बुलंद कर देता है। नजरों को झुकाना तेरा काम है, नजरों में शर्मो हया लाना तेरा काम है, तुझे तेरी मोहब्बत लोगों के दिलों में बसाना रब्बे जुल जलाल का काम है। नबी रहमत कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने इसी मोहब्बत को सीखा था, जिसके बारे में कायनात के इमाम ने यह फरमाया था, लोगों सुन लो, हर दीन का कोई ना कोई इम्तियाजी वसफ होता है, खूबी होती है जिससे पहचान लिया जाता है। इसकी ये खूबी है, इसकी पहचान ये है, निशानी ये है, अलामत ये है। कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुलुकुल इस्लामी अल हया। लोगों सुन लो, इस्लाम का इम्तियाजी वसफ हया है। जिसके अंदर हया है वो ईमान वाला है, इस्लाम वाला है। जिसके अंदर हया नहीं है उसके अंदर ईमान ही नहीं है। एक और हदीस मुबारक समात फरमा ले, सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हयाउ वल ईमानु, ये हया और ईमान कुरानाउ जमीअन, ये आपस में इकट्ठे इकट्ठे हैं, ये आपस में करीब करीब है। कुरानाउ जमीअन, इकट्ठे इकट्ठे हैं। इज़ा रुफिया अहदुहुमा रुफिया अल आखर, जब एक चला जाता है दूसरा खुद ब खुद रूठ जाता है।
ईमान गया तो हया नहीं रहती, हया गया ईमान नहीं रहता। जिसके अंदर शर्म और हया है वो मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि उसके सीना में ईमान मौजूद है, और जिसके अंदर हया नहीं है उस इंसान को अपना सोचना चाहिए, उसका ईमान मशकूक है। क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हया और ईमान इकट्ठे इकट्ठे हैं, जब एक जाता है दूसरा खुद ब खुद रुखसत हो जाता है। अगर आज तेरी मेरी तारीकियां, रात की तन्हाइयां बेहयाई फहाशी में नहीं गुजर रही, मोबाइल, इंटरनेट, दुनिया की बेहयाई फहाशी तन्हाई समझकर कोई देखने वाला नहीं है। मोबाइल पास है, बेहयाई देख रहा है, दुनिया की फहाशी और यानी इसके सामने है, दुनिया की बेहयाई में ये उमड़ा हुआ है। सुन लेना चाहिए, अगर तेरी रातों की तारीकियां इस तरह गुजर रही है, तेरे सीने के अंदर ईमान की दौलत मौजूद ही नहीं है, ईमान रूठ चुका है। कायनात के इमाम का फरमान सच्चा है। मैं किसी को यह नहीं कह सकता, कोई कहेगा जी मैं तो बड़ा पक्का नमाजी हूं, मैं तो बड़ा तहज्जुद गुजार हूं, मैं तो बड़ी अल्लाह अल्लाह करता हूं, मेरा ईमान कैसे रूठ गया मुझे नहीं पता। मैं तुझ पर कोई एतराज नहीं कर रहा, मैं तो आमिना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा फरमान सुना रहा हूं। ईमान और हया इकट्ठे हैं, एक जाता है दूसरा भी रूठ जाता है। जब दोनों हो फिर ही रह सकते हैं, वरना इनके बगैर एक चीज किसी सीने में महफूज नहीं रह सकती। ईमान होगा तो हया होगी, हया होगी तो ईमान होगा। जब एक चीज रूठ गई तो दूसरी खुद ब खुद गई। और कायनात के इमाम ने एक और हदीस मुबारका सही बुखारी के अंदर हदीस है, कायनात के इमाम ने फरमाया ये ईमान जो है ना, इसके बिज़अतुन व सबऊन शोबा, इसके 70 से कुछ ऊपर शाखें हैं, शोबे हैं, हिस्से हैं, जुज हैं, टुकड़े हैं। कायनात के इमाम फरमा रहे हैं, फरमाया वल हयाउ मिनल ईमान, इसी तरह हया भी ईमान के शोबों में से, ईमान के टुकड़ों में से, ईमान के हिस्सों में से, ईमान की शाखों में से एक शाख है। और एक हदीस मुबारका में कायनात के इमाम ने फरमाया अल हयाउ कुल्लुहु ईमान, हया तो है ही ईमान, जिसके अंदर हया है वो ईमान वाला है, जिसके अंदर हया नहीं वो ईमान से कोरा है। नबी रहमत कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान समात फरमा लीजिए। कुरान का पैगाम, कुरान की तालीम को अपने सीनों में समा लीजिए। कुरान की तालीम शर्म और हया की तालीम है। नबी रहमत कायनात के इमाम ने सहाबा को हया सिखाया है, शर्म और हया के पैकर बनाया है। उनकी नजरों में जैसी शर्म और हया थी, कायनात वालों के लिए मिसाल बन गई। वो शर्म और हया आज हमें हासिल करनी चाहिए, उस शर्म और हया का पैकर बनना चाहिए। कुरान की तालीम, कुरान का पैगाम हमारे लिए ये है। नबी रहमत कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हयाउ ला याति इल्लल खैर, ये हया जो है ये खैर ही लेकर आता है, ये भलाई लेकर आता है, ये इंसान के लिए बेहतरी लेकर आता है। हम में से आज हर बंदा चाहता है मुझे खैर मिल जाए, भलाई मिल जाए, बेहतरी हो जाए, अच्छे काम हो जाए। चाहते हो तेरा घर अच्छा हो, चाहता है तेरा मकान अच्छा हो, चाहता है तेरी दुकान अच्छी हो, चाहता है फैक्ट्री कारखाना अच्छा हो, चाहता है तेरी फसलें अच्छी हो, चाहता है तेरी औलाद अच्छी हो, चाहता है तेरे मामलात दुरुस्त हो, बेहतर हो। कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सीने से लगा लो, ला याति इल्ला बिल खैर, ये शर्म हया जो है ये खैर ही लेकर आती है, भलाई लेकर आती है। तेरे घर में बेहयाई नहीं होगी, फहाशी नहीं होगी, उरियानी नहीं होगी। टीवी के जरिए, वीसीआर के जरिए, डिश एंटीने के जरिए, केबल के जरिए, नेट के जरिए दुनिया की फहाशी उरियानी अगर तेरे घर में नहीं है, डांस गाना तेरे घर में नहीं है, नाचना तेरे घर में नहीं है, याद रख तेरा घर खैर वाला है। अगर तेरे घर के अंदर किसी भी जरिए से बेहयाई हो रही है, फहाशी फैलाई जा रही है, तेरे घर में खैर नहीं हो सकती। फिर वो घर जिन्नात का असेब वाला घर तो बन सकता है, ईमान वालों का घर नहीं बन सकता। फिर परेशानियां तो वहां पे आ सकती हैं, खैर नहीं आ सकती, भलाई नहीं आ सकती, बेहतरी नहीं आ सकती। रोज बरोज उस घर के हालात बदतर से बदतर तो हो सकते हैं, भलाई की तरफ, अच्छाई की तरफ, बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि इस घर के अंदर शर्मो हया नहीं। जिस घर में शर्मो हया होती है वहां पे खैर ही खैर होती है। अल हयाउ ला याति इल्ला बिल खैर, हया खैर ही लेकर आता है, भलाई लेकर आता है, रुश्द व हदायत लेकर आता है, बेहतरी लेकर आता है।
हालात बदलते चले जाते हैं, बेहतरियां होती चली जाती हैं, मामलात सुधरना शुरू हो जाते हैं, मामलात ठीक होना शुरू हो जाते हैं, कारोबारों में बरकतें हो जाती हैं, घर में अमन हो जाता है, सुकून हो जाता है, रिश्तेदारियों में मोहब्बतें कायम हो जाती हैं, हमसायों के साथ ताल्लुक अच्छे हो जाते हैं, मोहब्बतें प्यार बढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनकी नजरों में शर्म व हया आ जाती है। अल्लाह इन्हें दुनिया आखिरत में मुमताज कर देता है। कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीमात कुरान के जरिए उम्मत को दी हैं। उम्मत ने सीने के साथ इन तालीमात को लाया है। सबसे पहले नबी के सहाबा ने इन तालीमात को रसूलुल्लाह से सीखा, सीखने के बाद उस पर अमल किया, उम्मत को समझाया कि ऐसे अमल करके दिखाते हैं। मैंने कुतुब अहदीस के अंदर, कुतुब तवारीख के अंदर ये पढ़ा है कि नबी रहमत कायनात के इमाम के सहाबा एक जंग के मौका पर गए, बहुत से कैदी उन्हें कैद कर कर मदीना तैयबा में लाए और लाकर रसूलुल्लाह के सामने इन कैदियों को खड़ा कर दिया गया। जंजीरों से ये बंधे हुए, इन्हें जनाब सलाखों के अंदर जकड़ा हुआ है, पाबंदे सलासल किया हुआ है। ऐसे इनकी लाइन बनी हुई है। ये बनु तय कबीले से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जिनका सरबराह जो था उसका नाम अदी बिन हातिम ताई था, जो गैर मुस्लिम ईसाई था, बाद में मुसलमान हुआ, दायरा इस्लाम को इसने इख्तियार किया, लेकिन अभी तक गैर मुस्लिम था। इसने मुसलमानों को बड़ी अज़ाएं दी थी, बड़ी तकलीफें पहुंचाई थी। इस पर मुसलमानों ने हमला किया, अल्लाह ने फतह अता फरमाई, बहुत से कैदी हुए, रसूलुल्लाह के सामने इनको लाया गया। अदी बिन हातिम ताई जंगलों की तरफ भाग गया। रसूल रहमत इन कैदियों को देखने के लिए आए। जब आते हैं तो देखा एक औरत भी खड़ी है, जिसके सर के ऊपर कपड़ा मौजूद नहीं है, जिसके ऊपर नकाब मौजूद नहीं है, जिसके सर पर दुपट्टा मौजूद नहीं है। कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अपनी चादर, जिसे कुरान ने या अय्युहल मुदस्सिर कहा है, या अय्युहल मुजम्मिल कहा है, उस मुजम्मिल व मुदस्सिर चादर को कायनात के इमाम ने ऐसे उतार कर इस औरत के सर के ऊपर उड़ा दिया। सहाबा में से कुछ लोगों ने इसको कहा कि आका, आप एक गैर मुस्लिम औरत को, एक ईसाई औरत को, एक काफिर औरत को, जिसके भाई ने इस्लाम को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, मुसलमानों के खिलाफ उसने बड़े प्रोपोगंडे किए हैं, इस मदीना बस्ती को उल्टने के लिए उसने बड़ी साजिशें की हैं, उसको आपने अपनी पाक तैर तैयब चादर उड़ा दी है। नबी रहमत कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की तरबियत की है, कुरान का पैगाम दिया है, कुरान की तालीम सिखाई है। कहा कि बेटी बेटी हुआ करती है, चाहे किसी दुश्मन की ही क्यों ना हो। बेटी तो बेटी होती है, चाहे किसी दुश्मन की क्यों ना हो। यह तालीम है आमिना के लाल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। शर्मो हया सिखाई है, शर्मो हया का पैकर बनाया है। इस औरत ने देखा कि यहां पे तो रहमत ही रहमत है, यहां पे तो करीमी के दरिया बह रहे हैं। इसने कहा आप इस कदर रहीम हैं, आप इस कदर करीम हैं, आप इस कदर शफीक हैं, आपकी शफकतें इस कदर समंदरों दरियाओं से बहना शुरू हो गई हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब, आप हमें माफ फरमा दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे माफ किया, लेकिन ये तो बता तू है कौन। ये आगे से कहती है कि मेरे बाप का नाम हातिम ताई था, जो बहुत बड़ा सखी था, सखावतें किया करता था। रसूल रहमत ने फरमाया, हाँ मुझे पता है हातिम ताई बहुत बड़ा सखी था, मैं मोहम्मद भी सखावत को पसंद करता हूँ, इसलिए मैं तुझे आज़ाद करता हूँ। ये औरत कहने लगी, अल्लाह के प्यारे नबी, मैं अकेले अपनी तन्हाई आज़ादी नहीं चाहती, ये मेरी कौम कबीले के जो लोग जिन्हें आप गिरफ्तार करके लाए हैं, जिन्हें आपने पाबंदे सलासिल किया हुआ है, इनकी भी आजादी चाहती हूं, इन्हें भी आजाद किया जाए। कायनात के इमाम ने फरमाया, जा इन्हें भी आजाद किया। ये औरत आगे से कहती है, ठीक है, मुबारकबाद के मुस्तहिक अपने भाइयों को, अपने कबीले के लोगों को खुशखबरी सुनाई कि तुम्हें आजाद कर दिया गया है, इनकी जंजीरें खोल दी गई, इनकी हथकड़ियां खोल दी गई, ये आजाद हो रहे हैं, जा रहे हैं। ये बीबी वहां पे खड़ी हुई है। रसूल रहमत ने फरमाया, तू क्यों नहीं जाती? इसने कहा, अल्लाह के प्यारे नबी, मैं अपनी कबीले के लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। अगर आपने मुझे आजाद कर दिया है, फिर एक और एहसान कर दें, एक और नेकी कर दें। फरमाया, क्या चाहती हो? इसने कहा, अल्लाह के प्यारे नबी, मेरी ख्वाहिश ये है, तमन्ना ये है कि आप अपने गुलामों में से, अपने खादमों में से, अपने सहाबा में से कुछ लोगों को मेरे साथ भेजें, वो मुझे साथ लेकर मेरे भाई को ढूंढ कर मेरे भाई तक मुझे पहुंचाएं। मैं इन अपने कबीले के लोगों के साथ जाना नहीं चाहती। किस कदर रसूलुल्लाह के सहाबा में उसने शर्म व हया देखी थी।
कह रही है मैं अपनी कौम के नौजवानों के साथ सफर नहीं करना चाहती, आप अपने सहाबा को मेरे साथ भेजें, वो मेरे भाई को ढूंढे, ढूंढ कर मुझे वहां तक पहुंचाएं। रसूल रहमत ने चंद सहाबा की ड्यूटी लगा दी, इस औरत को लेकर जा रहे हैं। कई दिन तक ये ढूंढते रहे, शहरों में, इलाकों में, जंगलों में। एक जंगल के अंदर अदी मिले, वहां पे ये मौजूद थे। अदी ने अपनी बहन को कई गैर मर्दों के साथ जब आते हुए देखा, गैरतमंद था, ईसाई तो था, गैरत का जनाजा अभी उसके सीने से नहीं निकला था। अपनी बहन को मुखातिब करके कहता है, ऐ मेरी बहन, तेरे साथ बातें बाद में होंगी, पहले मुझे ये बता, कई दिन तुझे बीत गए हैं, कई रातें तेरी बीत गई हैं, गैर मर्दों के साथ तू सफर करती रही है, बता अपनी शर्मो हया बचा के आई है या अपनी शर्मो हया लुटा के आई है? शर्मो हया बचा के आई है। बहन ने जो बात कही थी ना, आज के इस दरस का, आज की इस तकरीर का खुलासा है जो मैं अपने नौजवान भाइयों के सामने रखना चाहता हूं, अपने भाइयों को यह बताना चाहता हूं, तोलाबाए कराम को समझाना चाहता हूं, कुरान मजीद फुरकान हमीद की तालीम का ऐलान करना चाहता हूं। वो ये है, नबी रहमत कायनात के इमाम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के साथ चंद दिन गुजारने वाली, चंद रातें गुजारने वाली ये औरत अपने भाई को मुखातिब करके कहती है, ऐ अदी, अपनी नजरों को झुका ले, मुझे रब्बे किबरिया की कसम है, आज तक मुझे तेरी नजरों में वो हया नजर नहीं आई जो मोहम्मद करीम के गुलामों की नजरों में हया मौजूद है। ये है आका के गुलाम। आज दावा तेरा भी है, मेरा भी है कि गुलाम है, गुलाम है, रसूल के गुलाम है। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, दावे बड़े हैं, दलीलें बड़ी हैं, हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है, नमूसे रिसालत के लिए जानो माल सब कुछ कुर्बान है, दावा बड़ा है नबी के गुलाम होने का। लेकिन जब अमल की बारी आती है, चौकों पे खड़ा हुआ, चुरस्तों पे खड़ा हुआ ये नौजवान अपनी कौम की बेटियों की तरफ जब नजरें उठाकर देख रहा है, पता चलता है नबी का गुलाम नहीं है, क्योंकि नबी के गुलाम की नजरों में शर्मो हया होती है, वो शर्मो हया का जनाजा निकालने वाला नहीं होता। कहा कि भाई, अपने भाई को, मां जाए भाई को कह रही है, तेरी नजरों में वो हया नहीं है जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की नजरों में हया है। आज अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ये हया की दौलत हमें अता फरमा दे। ये हया की दौलत हमसे रूठ चुकी है, ईमान की मिठास खत्म हो गई है, ईमान की वो हलावत हमारे सीनों से निकल गई है। नमाज पढ़ते हैं मजा नहीं आता, कुरान पढ़ते हैं सुकून नहीं आता। और वो भी लोग थे, नमाज पढ़ रहे हैं, जिस्मों से खून बह रहा है पता ही नहीं है, जिस्म के आज़ा काटते जा रहे हैं पता ही नहीं है। कुरान पढ़ते हैं, आसमानों से फरिश्ते उतर रहे हैं, इस कदर सुकून नाज़िल हो रहा है, पूरी पूरी रात कुरान पढ़ते बीत जाती है। ये हैं जिन्हें सुकून मिलता था, क्योंकि उनके सीनों में हया थी, हया की वजह से अल्लाह ने उन्हें सुकून अता फरमा दिया था। मेरे प्यारे भाइयों, यह कुरान की तालीम है। ये दो बातें और करके अपनी बात को मुकम्मल करूंगा। कायनात के इमाम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, जिनके अंदर शर्मो हया थी, शर्मो हया की तालीम देने वाले थे, कुरान की तालीम को सीखा था, लोगों को सिखाया था। वो तालीम क्या थी? शर्मो हया की तालीम थी, जिसने ईमान की मिठास उनके सीनों में पैदा कर दी थी। वो कौन लोग थे? शर्मो हया के अमली पैकर थे। एक खातून, उसने अपना मुकदमा सहाबी की अदालत में दायर किया। ये काजी उल क़ज़ा है, इनकी अदालत में यह मुकदमा दर्ज किया गया। अल्लामा अलबानी रहिमहुल्लाह की किताब अल हिजाब है, उसके अंदर यह वाक़या मौजूद है। अल्लामा अलबानी फरमाते हैं कि एक औरत सहाबिया एक सहाबी की अदालत में मुकदमा दर्ज करवाती है कि मेरे बेटे को कत्ल कर दिया गया है, लिहाजा कत्ल के बदले में कत्ल चाहती हूं, किसास चाहती हूं, कातिल को फांसी के फंदे पे लटका देखना चाहती हूं, मुझे इंसाफ चाहिए, अदल चाहिए। सहाबी की अदालत के अंदर केस है, मुकदमा चल रहा है, ये औरत अपना दावा पेश कर रही है, सहाबी है। अल्लाह की कसम, वो सहाबा जिनकी नजरों में शर्मो हया था, वो सहाबा जो हिदायत वाले थे, जो फौजो फला वाले थे, जो अल्लाह का हिजब था, जिन्होंने अल्लाह ने कामयाबी के जिनके लिए ऐलान किए, जिनके दिलों के अल्लाह ने इम्तिहान लिए हैं, उनके लिए जन्नतों के ऐलान किए, उनके सीनों में तकवा और ईमान का ऐलान किया है, उस सहाबी की अदालत में मुकदमा है। ये सहाबी आगे से कहता है, मेरी बहन
जब तू बात करती है ना, तेरे चेहरे पे जो नकाब है वो नकाब कपड़ा तेरे लबों के साथ अटक जाता है, जिसकी वजह से तेरी आवाज सही बाहर नहीं आती, तेरे अल्फाज सही तरह समझ नहीं आते। अपने चेहरे से पर्दा हटा दे। मामला छोटा नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। तेरे बेटे के कत्ल का मसला है, तेरे बेटे के कत्ल का मसला है। कहीं ऐसा ना हो कातिल छूट जाए, तुझे इंसाफ ना मिल सके, इसलिए नकाब हटा दे और मेरे साथ बगैर नकाब के बात कर, ताकि सही तरह तेरी बात समझ आ जाए। उसके दिल के अंदर जो बात है उस पर भी 100% हमें यकीन है कि ये शर्मो हया के अमली पैकर थे। बहुत बड़ी बात थी, शर्मो हया वाले थे। आगे से ये सहाबी हैं, इनके अंदर भी शर्मो हया था, ये भी शर्मो हया की अमली पैकर थे। ये आगे से क्या कहती हैं कि मुकदमा तो वाकई बहुत बड़ा है, मेरे बेटे के कत्ल का केस मेरे खिलाफ भी जा सकता है, मेरा दावा खत्म भी किया जा सकता है, खारिज भी किया जा सकता है। मुझे पता है मेरे बेटे के कत्ल का मामला है, लेकिन याद रखो मेरा बेटा कत्ल हुआ है, मेरी हया कत्ल नहीं हुई, मेरी हया कत्ल नहीं हुई। बहुत बड़ी बात साहबिया ने कही है। अगर हमें समझ आ जाए किसी मुसलमान की बेटी बेपरद बाजारों के अंदर नजर ना आए, किसी मुसलमान की बहन बाजारों के अंदर बेपरद नजर ना आए, चेहरे से नकाब हटा हुआ, सर से दुपट्टा पीछे, कोई माँ बहन बेटी ऐसी गलियों बाजारों में हमें नजर ना आए, क्योंकि ये सहाबिया कह रही हैं मेरा बेटा कत्ल हुआ है। हालांकि इज़्तिरारी कैफियत के अंदर अल्लाह ने माफ़ रखा है, कोई बात नहीं, अल्लाह की तरफ से माफ़ी है, इज़्तिरारी कैफियत है। लेकिन इसके बावजूद इस सहाबिया ने कहा चाहे मेरे बेटे के कत्ल का मसला है, मेरे बेटे के कातिल छूटते हैं छूट जाए, फांसी के फंदे पर लटकने की बजाय बाजारों में घूमते हैं, घूमते रहे, मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैं अपनी हया को कुर्बान नहीं करूंगी। ये शर्मो हया है जो कुरान ने हमें दी है, जो तालीम कुरान ने हमें सिखाई है। इस तालीम को सीने से लगा ले, इंशाअल्लाह दुनिया भी बेहतर आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। नबी रहमत कायनात के इमाम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम के सामने एक सहाबिया आई, ये काले स्याह रंग की हबशी औरत नबी रहमत से आकर कहती है अल्लाह के प्यारे नबी, अल्लाह के आगे हाथ फैलाएं, मेरे लिए दुआ कर दें, बीमार हूं, मिर्गी का दौरा पड़ता है, गलियों बाजारों में गिर जाती हूं, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह इस बीमारी से मुझे शिफा अता फरमा दे। कायनात के इमाम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बीबी अगर तू इस बीमारी पर सब्र कर ले, मुझसे दुआ ना करवाए, इस बीमारी पर सब्र कर ले, मैं मोहम्मद तुझसे वादा करता हूं इस सब्र के बदले में अल्लाह से जन्नत लेकर दूंगा, सब्र के बदले में जन्नत। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, सब्र तू कर ले, वादा मोहम्मद करीम का रहा, कल क़यामत के दिन जन्नत लेकर दूंगा। इसने औरत ने कहा अल्लाह के नबी मुआहदा पक्का, बात पक्की, मैं इस बीमारी पर सब्र करूंगी, दुआ नहीं करवाऊंगी, आप जन्नत मुझे लेकर दें, लेकिन एक मेरी बात है, आप वो मेरे लिए जरूर दुआ कर दें। रसूलुल्लाह ने फरमाया क्या चाहती हो? इसने कहा अल्लाह के प्यारे हबीब, मैं ये चाहती हूं मुझ पर ये गशी के दौरे पड़ते रहे, ये बीमारी बार बार आए, गलियों में गिरूं, बाजारों में गिरूं, चौकों चौरस्तों पे गिरूं, जहां मर्जी गिरूं, मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी ये दुआ कर दे ऐसी कैफियत के अंदर मेरा पर्दा मुझसे ना हटे, मेरा पर्दा ना हटे, इसकी दुआ कर दे। है जिन्होंने बीमारी के अयाम के अंदर इज़्तिरारी कैफियत के अंदर भी अपने पर्दे को सलामत रखने के लिए इमामुल अंबिया से दुआएं करवाई हो, वो कैसी शर्मो हया वाली होंगी। अगर आज ऐसी बेटियां, ऐसी बहनें, ऐसी माएं हमारे मुआशरे में आ जाएं, ये मुआशरा अमनो अमान का मरकज बन जाए, महवर बन जाए, कुरान की तालीम को सीने से लगाने वाले लोगों का मरकज बन जाए। आइए इन तालीमात को अपनाने की कोशिश करें, जिन तालीमात को अपनाया था सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने,
यही फातिमातुज़ ज़हरा है जिसका तज़किरा आज सुनते हैं, हमारी माएँ भी सुनती हैं, बहनें भी सुनती हैं, भाई भी सुनते हैं, खुश होते हैं कि इस्लाम ने ऐसी बेटियां भी पैदा की हैं जिन्हें सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा कहा जाता है, जो जिगर गोशाए रसूल थी। ऐसी औरतें और ऐसी ख़वातीन भी इस्लाम के अंदर आई हैं, लोग फख्र करते हैं वही फातिमातुज़ ज़हरा हैं। इस दुनिया को छोड़कर जा रही हैं, अपने खामद को बुलाकर कहती हैं, ऐ मेरे सरताज, मेरी एक वसीयत है, इस वसीयत पर अमल करना। कहा क्या चाहती हो? कहा मेरी ख्वाहिश ये है फातिमा इस दुनिया को छोड़कर चली जाए, फातिमा की मैयत को दिन के उजाले में घर से ना निकाला जाए। फातिमा ये चाहती है कि रात की तारीकी के अंदर मेरी मैयत उठाई जाए, मेरा जनाजा ले जाया जाए, मेरी मैयत के आगे किसी किस्म की रोशनी ना हो, अंधेरे के अंदर मेरी मैयत को उठाया जाए, किसी गैर महरम की मेरी मैयत के ऊपर भी नजर ना पड़े। यह है शर्म व हया जो नबी रहमत कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। कुरान ने आपको, सिर्फ ख्वातीन को नहीं, आपको और मुझे भी तालीम दी है, ख्वातीन से पहले दी है। हम कहते हैं ख्वातीन पर्दा करें, पर्दा करना उनका काम है, ये बेपर्द होकर निकलती हैं, हमारी नजरें पड़ती हैं, इसमें क्या हरज वाली बात है? अल्लाह ने औरतों को बाद में हुक्म दिया, मर्दों को पहले हुक्म दिया। कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम। कहा कि ऐ मर्दो, अपनी नजरों को झुका के रखा करो, अपने जिस्मों की हिफाजत किया करो, यह तुम्हारे लिए बड़ा पकीज़ा मामला है, ये पकीज़ा बात यही है। अपनी नजरों को झुका लो, जब नजरों को झुकाओगे इंशाअल्लाह अल्लाह मुमताज कर देगा। लेकिन अगर शर्मो हया की ये झुकाओ नजरों में ना आया, फिर शराफतें हमसे रूठ जाएंगी, अमन हमसे रूठ जाएगा, ईमान हमसे रूठ जाएगा, मोहब्बत प्यार हमसे रूठ जाएंगे, रिश्तेदारियों के अंदर फर्क पड़ जाएगा, हमसाए हमसायों से दस्तों गिरेबान हो जाएंगे, भाई भाई के ऊपर हाथ उठाएगा, बाप बेटे की, बेटा बाप की इज्जत नहीं करेगा, बेटी माँ की, माँ बेटी की इज्जत और एहतराम नहीं करेगी। अगर शर्म व हया होगी, सबकी यकीनन शर्म व हया की वजह से आपस में मोहब्बत भी होगा, प्यार भी होगा। ये जदीद दौर जो है, इस जदीद दौर ने बख्शा है जिस्मों को वो पैराहन कि लाख पर्दों में भी उरियानी नहीं जाती। जदीदियत को ना अपनाए, मुहम्मदियत को अपनाएं। इंशाअल्लाह रहमान कुरानी तालीम को जब हम सीने से लगाएंगे, अल्लाह दुनिया में आखिरत में मुमताज़ कर देगा। अल्लाह मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।